Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video on the revision of the science chapter Some Natural Phenomena for Class 8 CBSE students. The video covers essential topics such as lightning, earthquakes, and tsunamis, providing a clear and concise explanation of these natural phenomena. This resource is designed to support students in their revision efforts, ensuring that they have a thorough understanding of the subject matter. The video aims to help students consolidate their knowledge and address any areas of confusion or uncertainty. By breaking down complex concepts and presenting them in an accessible format, Ignited Minds Tutorials supports students in their learning journey. The video also includes practice questions and examples to test students' understanding and reinforce their learning. With exams approaching, this revision video offers a valuable opportunity for students to review and reinforce their understanding of the natural phenomena covered in the science curriculum. By engaging with this resource, students can feel more confident and prepared as they approach their exams. Ignited Minds Tutorials continues to provide high-quality educational content, supporting students in their academic endeavors. Okay, people, we will be doing the revision. Yesterday we did a revision of friction. Today we will be doing some natural phenomena. Okay? तो natural phenomena में कुछ questions deal करेंगे और आपके NCERT के book के हिसाब से जो भी आपके points हैं उसमें हम जाएंगे. ठीक है? So lighting जैसे कि आपके what is lighting? Lighting is electric spark on a huge scale. तो आपका जो thunder and lightning होता है बादलों में, ठीक है? जो बादल बरसते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के चलते होता है. दिस बेसिकली ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. ये आपके आंसर में होना चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होता है. ठीक है? कोई छोटे पैमाने पे नहीं होता है. On a very large scale it happens. ठीक है? In ancient time, what did people think the cause of lightning? तो क्या था वैसा cause of lightning? In ancient time, people were afraid of lightning and thought that the wrath of gods was vindicated. तो पहले के ज़माने के लोग वैसा सोचते थे कि हमारे गॉड जो है वो एंग्री हो गए जिसके वजह से लाइटनिंग हो रहा है. ठीक है? What is the actual cause of lightning? Lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. तो ये clouds हैं और इन clouds में वैसा क्या हो रहा है? Accumulation of charges होता है. ठीक है? Charges जो है तो collect हो रहे हैं. ठीक है? अभी देखो एक cloud दूसरे cloud के साथ जब भी रब करेगा, रबिंग बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? हमने देखा फ्रिक्शन लिंकिंग. तो यहाँ पे अगर रबिंग होगा, it will produce charges. ठीक है? Rubbing between two bodies, rubbing between two bodies is going to produce charges. और इस चार्जेस की वजह से वैसे आपके क्लाउड्स में चार्जेस देते हैं और इसकी वजह से क्या होती है वैसा लाइटनिंग. ठीक है? This basically causes lightning. Rubbing between clouds produces charges and this produces lightning. Are we clear on this one, people? Okay. Now what is amber? The amber is a kind of resin. ये वैसा एक टाइप का रेजिन होता है. ठीक है? Amber is a kind of resin. ठीक है? What happens when amber is rubbed with fur? ठीक है? तो amber को जब अपन fur के साथ it develops, तो यहाँ पे जब भी हम rubbing प्रोड्यूस करते हैं, rubbing के चलते आपका प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन के चलते आपका जनरेट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? इस फ्रिक्शन के चलते आपका जनरेट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? करेक्ट? तो रबिंग के चलते प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के चलते जनरेट होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो एम्बर को जब हम फर से रब करते हैं, when amber is rubbed with fur, it basically produces static electricity. ठीक है? ये सारी चीजें आपको देखो आपके कीवर्ड्स हैं. ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना. ठीक है? when amber is rubbed with fur, it develops the objects is called static electricity. What is static electricity? The electrical charge generated by rubbing two objects is called static electricity. दो ऑब्जेक्ट्स के रबिंग से जो चार्ज जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब हम रब करते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरे में नेगेटिव. ठीक है? और ये जनरली आपके नॉन कंडक्टर्स में होता है, कंडक्टर्स में नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडक्टर्स में चार्ज एक जगह ठहरेगा नहीं, वो फैल जाएगा. ठीक है? नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में ही ऐसा हो सकता है. इट इज ओनली पॉसिबल इन नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. ठीक है? जैसे आपके एग्जांपल्स और एग्जांपल्स क्या है वैसा आपको आप अगर समझेंगे ग्लास को अगर आपने रब किया किससे, वुल से, अगर ग्लास को आपने वुल से रब किया, ठीक है, तो भी आपकी
अगर आपने भाई साहब ग्लास हो गया, ग्लास में रख के एबोनाइट रॉड, इसको भाई साहब जब हमने फर्श से रख दिया, ठीक है, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि किसी को करंट लग जाए, लेकिन ये सिर्फ इंसुलेटर्स में ही होता है, ठीक है। राइट, द नेचर ऑफ चेंजेस ऑन अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास का आपका वैसा बोला यहाँ पे सिल्क क्लॉथ, ग्लास व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, और एबोनाइट रॉड रब्ड विद वुड, ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ओके, राइट, द नेचर ऑफ चार्जेस ऑफ ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव व्हाइल द सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिव। तो अगर आपका एक ग्लास रॉड है और इसको आपने भाई साहब एक सिल्क क्लॉथ से रब किया है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे और जहाँ पे रबिंग हुई है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। और क्योंकि ये दोनों भी इंसुलेटर्स हैं, इसीलिए चार्जेस फ्लो नहीं हो पाए। दिस चार्जेस आर नॉट गोइंग टू फ्लो, दे विल रिमेन स्टैग्नेंट, ठीक है। तो चार्जेस जब क्या होते हैं, व्हेन चार्जेस बेसिकली रिमेन स्टैग्नेंट, ठीक है। आपके पास अगर चार्जेस क्या रहेंगे, स्टैग्नेंट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक। दिस इज नोन एज स्टैटिक, और इसीलिए जनरेट होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर तो आपका ग्लास रॉड में जहाँ पे आपने ग्लास रॉड को रब किया है, वो इस वहीं पे ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड द इंटरैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर नोन, सो वी नो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऑब्वियसली इट इज इजी है वैसा आपका, ठीक है। वन इज पॉजिटिव and the other one is negative. So one is positive charge and the other one is negative charge. What happens when the two charges are brought close to each other? ठीक है, तो आपका देखो इसका आपका क्या है, when close to each other, like charges अगर like charges हो जाएंगे आपके repel, और unlike charges क्या होंगे, unlike charges attract. Like charges repel and unlike charges attract, ठीक है। तो like charges मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग प्लस और माइनस, प्लस और प्लस, तो ये एक दूसरे को चटकाएंगे, हट जाए, ठीक है। अगर माइनस और माइनस को आपने सामने लाया, दे विल ऑल्सो रिपेल, रिपेल मतलब चटकना, ठीक है। और अट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, दे विल बेसिकली अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे भी आपका देखो अगर प्लस माइनस है, यहाँ पे अगर सब माइनस है और ये वाला प्लस है, तो भी आपका वैसा अट्रैक्शन, सो दे विल अनलाइक चार्जेस मतलब ऑपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस। लाइक चार्जेस मतलब दोनों भी प्लस या दोनों भी माइनस। अगर ऐसा होगा तो लाइक चार्जेस, तो अगर चार्जेस ऑफ द सेम टाइप को अपन क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज अनलाइक चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, transfer of charge, name the device which is used to test whether an object is charged or not. तो किस डिवाइस को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कैसा डिवाइस होता है बच्चा बाटी, इलेक्ट्रोस्कोप कुछ ऐसा सा डिवाइस होता है, देखो ये ऐसा डिवाइस होगा, देखो इस तरह का डिवाइस, this is how an electroscope will look like. ठीक है, ओके। तो अभी समझ लो ये आपका है इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली, और आप यहाँ पे एक प्लेट होगा इसका, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ प्लेट आउट हियर, ऐसा प्लेट है, पूरा मेटल है ये, दिस इज प्योरली मेटल, और यहाँ पे आपके थिन मेटल फॉइल्स होंगे, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, फॉइल होगा ना जैसे आपने देखा है, ठीक है। सो या आपका गोल्ड फॉइल भी हो सकता है, दिस कैन बी इवन गोल्ड फॉइल, ठीक है। ऐसे फॉइल्स होते हैं जो बहुत पतले से होते हैं। जब भी आप किसी चार्ज बॉडी को उसके पास लाते हैं, समझ आपने प्लस चार्ज बॉडी को उसके पास लाया, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, देखो माइनस, और उल्टे तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, रिपेल, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई चार्ज बॉडी नहीं है, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो समझ लो कोई चार्ज बॉडी नहीं है, ऐसे एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ये दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी बेसिकली, नो चार्जेस। सो लेट्स से अगर हमने न्यूट्रल बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी, तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये वैसा इधर नहीं है, दिस नॉट गोइंग टू रिटर्न, दिस
इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस, इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही आप चार्ज बॉडी को लाएंगे, अब सपोज ये आपने कोई माइनस चार्ज वाले बॉडी को लाया, तो इसमें क्या डेवलप होगा, प्लस चार्ज, और ये वाला चार्ज डेवलप होता है बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, ये डेवलप हो जाएगा वैसे, ठीक है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस, बिना छुए करना, ठीक है, नो टचिंग हियर, ठीक है, इससे हम इसको टच नहीं करवा रहे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ऑटोमेटिकली इसमें प्लस डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस डेवलप होगा, ये पूरा एक ही बॉडी है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, और हमने अभी पढ़ा कि भाई साहब लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, अगेन दीस चार्जेस विल बेसिकली डू व्हाट, दे रिपेल, सो दे विल रिपेल। तो ये फिर से वैसा कैसे किधर चलेगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू रिपेल, ये ऐसे रिपेल, ओके। आर यू क्लियर ऑन दिस वन? इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप पर्पस क्या है, टू डिटेक्ट चार्जेस विद इन अ बॉडी, टू डिटेक्ट चार्जेस इन अ बॉडी, एक बॉडी में चार्जेस को डिटेक्ट करना, क्लियर है? ओके, व्हाट इज अर्थिंग? सो अर्थिंग का प्रोसेस भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज अर्थिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अगर समझ लो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको अपन ने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो समझ लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ये पूरा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थ में जाने का जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ बॉडी टू द अर्थ। और अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग शॉक्स को मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कहीं पे भी अगर समझ लो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे अर्थिंग रहती है। कभी कभी अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से शॉक लग रहा है, ठीक है, उसको छू रहे तो शॉक लग रहा है, तो आपके घर में अर्थिंग का प्रॉब्लम है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो वो अर्थिंग का वायर चेक करेगा। हो सकता है अर्थिंग का वायर सड़ गया हो, क्योंकि अर्थिंग के वायर में ज़्यादा करंट जाता नहीं, ये अर्थिंग के वायर में वही करंट जाएगा जो बेसिकली एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, ठीक है। सो अर्थिंग इज बेसिकली डन टू प्रिवेंट एनी शॉक। सो अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज से इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं, इसके चलते वैसा मिसहैप्स हो सकते हैं, इसके चलते वैसा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट माइट रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज शॉक्स और एक्सीडेंट्स, अर्थिंग इज देयर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, तो भाई साहब लाइटनिंग कैसे होती है, देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो आपके क्लाउड्स हैं, इन क्लाउड्स के आपस में जो है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है, और जब इन क्लाउड्स में फ्रिक्शन डेवलप होता है तो इनमें चार्जेस आ जाते हैं। आपने देखा कि वैसा अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, इट डेवलप्स चार्जेस। इफ एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वुल, इट विल डेवलप चार्जेस। सो इफ टू क्लाउड्स आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, इट विल डेवलप चार्जेस, ठीक है। तो एक में समझ लीजिए प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया। अब इस अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, अर्थ जो है तो सारे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट पुल्स ऑल चार्जेस टुवर्ड्स इट, पुल्स ऑल चार्जेस टुवर्ड्स इट, it pulls all charges towards it. We know that during the occurrence of a thunderstorm, there is an upward and downward movement of air currents. The vigorous movements of water droplets in the clouds cause separation of charges. ठीक है, तो आपके सेपरेशन हो जाते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बन जाएगा। By a complex process not completely understood, positive charge accumulate near the ground and negative charges in the clouds. तो क्लाउड्स में नेगेटिव चार्जेस होता है और पॉजिटिव चार्जेस, यही चार्जेस होते हैं बहुत जोर से धरती की तरफ जाते हैं और इनको बेसिकली एयर ही मिलता है। अगर कोई दूसरा सोर्स मिल गया, जैसे बिल्डिंग में या पेड़ मिल गया, तो उसके ऊपर पहले गिरेंगे, क्योंकि कोई बॉडी से होते हुए वो जल्दी जाएगा अर्थ में, ठीक है। इसीलिए हम बिल्डिंग्स में क्या करते हैं, समझ लीजिए कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक त्रिशूल लगा देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी क्या होता है, चार्ज वैसा ऐसे गिरेगा इस बिल्डिंग के ऊपर और अर्थ में जाएगा, लेकिन जब बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो हो सकता है पूरा बिल्डिंग जल के राख हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर अगर गिरेगा तो कंडक्टर से फटाक से नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब विदाउट हार्मिंग द बिल्डिंग और पोजिंग अ थ्रेट टू द बिल्डिंग, इट विल डायरेक्टली पास ऑन टू द अर्थ, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। और इसको हम जनरली करते हैं दो चीज़ों के लिए, एक तो थंडर एंड लाइटनिंग की समय पे, और दूसरा क्या है भाई साहब, आपके बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट्स हैं उनसे भी ये कनेक्टेड रहता है, ताकि एक्सेस ऑफ चार्ज जो है तो इससे फ्लो होकर अर्थ में चला,
ठीक है, स्कॉर्टिंग में चला गया। So as soon as the negative charges from the clouds and positive charges on ground mean huge amount of energy is produced, तो बहुत बड़ा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, that we see as lightning. This process is known as electrical discharge. अगर किसी के सर पे ये बिजली गिरती है तो उसका बचना नामुमकिन है, नेक्स्ट टू पॉसिबल, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम, ठीक है. The process of electric discharge can occur between two clouds, between clouds and the earth, even between clouds and the human body. Such lightning strokes could be fatal. Fatal मतलब जानलेवा हो सकता है, ठीक है. किसी के ऊपर भी गिरेगा वो जल के राख हो जाएगा, बचना मुश्किल है, ठीक है. So this is basically produced during rainy clouds. और ये जो क्लाउड जब बादल में घूमते हैं तो बहुत हाई स्पीड से होते हैं, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के ऊपर रब करता है तो चार्जेस डेवलप होते हैं, और चार्जेस जो क्लाउड में है वो अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अर्थ सारे चार्जेस को खींचता है अपनी तरफ. तो इसके लिए इसको एक मीडियम चाहिए. तो पहले जनरली वो एयर से उतरेगा, लेकिन एयर से बहुत स्लोली उतरता है, इसलिए वो किसी चीज़ को सहारे उतरेगा, और वो सहारा कुछ भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल पोल हो सकता है, कोई वैसा कंडक्टर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, एंड दैट्स हाउ इट बेसिकली रीचेस द अर्थ. आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है. व्हाट इज लाइटनिंग रॉड? तो अगर आप देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपका ऐसे बिल्डिंग्स में ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, सारे बिल्डिंग्स में होता है. लाइटनिंग रॉड इज अ डिवाइस यूज्ड टू सिक्योर tall buildings from the effect of lightning. A metallic rod taller and the height of the building to be protected is installed in the walls of the building during its construction. तो एक ऐसा मेटालिक प्लेट को इंस्टॉल किया है अंदर ही अंदर, और ये जाता है डीप डाउन अंदर की ओर, ठीक है. तो क्या होता है वैसा मेटालिक रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं. मेटल्स आर बेसिकली व्हाट? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है. तो एक मेटालिक रॉड है taller than the height of the building is to be protected, is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is out in the air. तो एक रॉड भाई साहब out in the air है, and the other is fixed in the ground. और दूसरे को भाई साहब हम ग्राउंड में फिक्स करते हैं. This provides easy room for transfer of electric discharge. तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जो भाई साहब कहाँ से आ रहा है? क्लाउड्स से आ रहा है. जो भी आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज which is actually coming from the clouds, ठीक है, easily भाई साहब easy route मिल जाता है उसको. It gets an easy route. Several such rods will be required to safeguard the building with a large area. वैसे बहुत सारे रॉड्स की जरूरत पड़ सकती है. जितना ज़्यादा बिल्डिंग का एरिया होगा उतनी ज़्यादा ऐसे रॉड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. The metal columns used during construction and wiring, plumbing also give protection to some extent, but to touch them during a thunderstorm. कभी भी मेटल की चीज़ों को नहीं छूना है जब आपका थंडरस्टॉर्म हुआ है, क्योंकि मेटल इन चार्जेस को खींचेगा. और जब भी मतलब बिजली गिर रही है या बहुत बारिश हो रही है या तूफान आंधी चल रहा है और काफ़ी आपको लाइटनिंग दिख रहा है, मेटल की चीज़ों को छूना मतलब खतरनाक हो सकता है, ठीक है. सो प्लीज अवॉइड टचिंग देम. क्लियर? आर यू क्लियर ऑन दिस वन? प्लम्बिंग आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू सम एक्सटेंट, बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. ओके. What steps should be taken if someone becomes a victim of lightning? देखो, अगर किसी के ऊपर बिजली गिरती है उसका बचना लगभग असंभव है, लेकिन अगर बचने की कोई गुंजाइश होती है तो क्या करें, ठीक है. If a lightning victim carries no electrical charge and cannot electrocute, जिसके ऊपर बिजली गिरी है उसको अगर आप छुएंगे तो आपको बिजली मिलेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है. सो उससे आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत डैमेज हो सकता है, ठीक है. The death by lightning occurs due to cardiac arrest. तो हार्ट बंद हो जाता है and stop breathing, क्योंकि बाहर से चार्ज आया है और ये चार्ज सर्किट को जला देगा. हार्ट का एक सर्किट है वो जल जाता है, ठीक है. So the death by lightning occurs due to cardiac arrest, मतलब there is an arrest of the heart. You can give first aid by performing CPR and mouth to mouth breathing. CPR टेक्निक होता है वैसा, ठीक है, जोर से वैसा इसमें आपके चेस्ट में पंपिंग करनी पड़ती है एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना पड़ता है, so that normal breathing of that person would be restored, ठीक है, which is to be learned from a trained person. ये आपका फर्स्ट एड ट्रेनिंग है बेसिकली, ठीक है. फर्स्ट एड में आता है ये आपका CPR. अगर किसी को ऐसा हुआ और अगर इमीडिएटली उसको CPR ट्रीटमेंट दिया गया तो शायद बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसी बिजली गिरती है किसी के ऊपर पहला चीज़ जो बंद होता है वो है हार्ट, ठीक है, और हार्ट को चलाना बहुत जरूरी है. What safety measures will you take to protect yourself from any spark when you are inside your home? अभी समझ लो भाई साहब बाहर बहुत बिजलियाँ कड़क रही हैं, ठीक है. ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद टेलीफोन कॉर्ड्स
ठीक है, टेलीफोन कॉर्ड्स भाई साहब आपके, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स शुड बी अवॉइडेड। इसे कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं और ये खींचेंगे अपनी तरफ। ये जो चार्जेस हैं ये एयर में हैं, इनको अपनी तरफ खींचेंगे। सो अवॉइड टचिंग दीज थिंग्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। ठीक है, इट इज सेफ टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। मोबाइल फोन्स को आप यूज कर सकते हैं। पहले के जमाने के टेलीफोन देखे हैं आपने, वो तार वाले होते थे टेलीफोन ऐसे वाले, ठीक है, उनको यूज करना डेंजरस है। ठीक है, वैसे आप मोबाइल फोन्स यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी कनेक्टेड चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, कोई भी मेन सर्किट से कनेक्टेड चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तब नहाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली स्विमिंग पूल जैसे एरिया में नहाना बहुत खतरनाक हो सकता है, उसमें अगर बिजली गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड as earliest electrical lights if remain on it do not cause any harm. Electrical appliances like computer, TV etc. should be unplugged as earliest. ठीक है, फटाफट बंद कर देना चाहिए। आप वैसे भी देखो कि जब बिजली कड़केगी तो मेन पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मिसहैप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड एज अर्लीस्ट। इलेक्ट्रिकल लाइट्स इफ रिमेन ऑन इट डू नॉट कॉज एनी हार्म। लाइट जलाकर आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा इनको बंद करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इनसे आपको खतरा नहीं है, लेकिन इनको खुद ही खतरा है। इनके सर्किट्स बहुत मतलब ये होते हैं, नाजुक से होते हैं, कंप्यूटर की और टीवी की सर्किट्स। थोड़ा भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो जल जाएगा, तो टीवी और कंप्यूटर्स आपके खराब हो सकते हैं। दे शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग थंडर लाइटनिंग। ठीक है, ओके। एयर कंडीशनर्स शुड बी स्विच्ड ऑफ टू प्रोटेक्ट द मशीनरी फ्रॉम डैमेज। एयर कंडीशनर भी डैमेज हो सकता है, गीजर भी डैमेज हो सकता है, ये सारे हाई वोल्टेज वाले जो चीज़ें हैं वो डैमेज हो सकती है। बाकी आपका पंखा या लाइट इससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, आर बी क्लियर दिस पीपल? सो मैक्सिमम जैसी आपकी बिजली चमकती है वी शुड बी स्विचिंग ऑफ एनी कंप्यूटर्स, टीवी, गीजर, एसी, ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। वैसे भी पावर ऑफ हो ही जाता है, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू इट फ्रॉम योर एंड एज वेल। ओके, अभी हम हमारे साथ चार्जेस से मूव करते हैं। अर्थक्वेक्स, how are earthquakes dangerous to us? Name the scale that is used to express the power of an earthquake. उसको अपन क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं किसी अर्थक्वेक का। रिक्टर स्केल कैसा होता है? देखो ऐसा पेन रहता है और एक कागज रहता है, ऐसा जो आपने टिश्यू पेपर देखा है, ऐसा रोलिंग टिश्यू पेपर। तो जैसे अर्थक्वेक आया तो ये सब कुछ हिलने लगता है, वैसा तो ये पेन भी हिलने लगेगा, तो ये अपने आप ही ड्राइंग बनने लगेगा, अपने आप ही ऐसा वैसा एक स्केल में ऐसे बनता रहता है। और यही आपका रिक्टर स्केल है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक होगा उतना ज़्यादा वैसा कंपन प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके रिक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। वी मेजर इट बाय रिक्टर स्केल। ठीक है, सो रिक्टर स्केल गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स बेसिकली अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं। These are basically earthquake waves. ठीक है, तो ये किसको क्या बोलते हैं हम? seismograph. What are seismic waves? These are waves produced on the earth's surface because of tremors. जो कंपन प्रोड्यूस होता है ये waves प्रोड्यूस करता है। ठीक है, What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking of the earth. अचानक से अगर अर्थ में शेकिंग प्रोड्यूस होती है तो उसको अपन earthquake बोलते हैं। What is the cause of earthquakes? Earthquakes are caused mostly due to the movement of Earth's plates. अभी अर्थ के नीचे देखो ऐसे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, these are known as tectonic plates. और इन प्लेट्स के सडन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ दीस टेक्टोनिक प्लेट्स, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर खिसक जाता है, और एक प्लेट मतलब छोटा सा प्लेट नहीं होता है, एक प्लेट मतलब समझिए एक पूरा महाराष्ट्र की साइज का हो या उससे भी बड़ा। ठीक है, these are huge plates which are there inside the Earth's crust, and when these tectonic plates happen to shuffle और थोड़ा सा कंपन प्रोड्यूस करते हैं तो आपका अर्थक्वेक कॉज होता है। एंड दे आर कॉज ऑफ मेजर डेवास्टेशन। हम इसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स बिफोर हैंड। ठीक है, ये अचानक मेहनत में ही आता है और बहुत बड़ी तबाही का कारण हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी कॉज ऑफ मेजर डैमेज। Okay, so what are the causes of earthquakes? We know that tremors मतलब कंपन। ठीक है, तो what are tremors? Tremors मतलब अंदर इधर का कंपन are caused by the disturbance that take place
deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. crust के नीचे होता है, ठीक है, deep down होता है बहुत अंदर तक, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेमर्स मतलब कंपन प्रोड्यूस होता है और इस कंपन के चलते बड़े बड़े बिल्डिंग वैसे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, ओके। द uppermost layer of the earth is not, आपने कभी रोड में काम होते देखा है, उधर ब्रेकर चलाते हैं कितना जोर से आवाज होता है समझिए, ठीक है, लेकिन उससे कभी रोड को धंसते हुए या बिल्डिंग गिरते हुए दिखा है नहीं, राइट। तो आप सोचिए कितना बड़ा ट्रेमर कॉज होता होगा अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, अर्थ में कितना बड़ा ट्रेमर कॉज होता है, ठीक है, ठीक है। The outermost layer of the earth is not one piece. It's not one piece. Okay, it is fragmented, and each fragment is called a plate. Okay, these plates are in continual motion. तो ये अर्थ जो है आपको लगता है कि ठोस जमीन है ना, लेकिन अंदर ही अंदर भाई साहब अर्थ एक लिक्विड है, अर्थ एक लिक्विड है, उसके ऊपर सारी चीजें तैर रही है। तो वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट भी भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, these plates are in continuous motion, अपने मोशन में, when they brush against one another or collide, or a plate goes under or move away from one another, they cause disturbance in the earth's surface. ये समझ लो, ये अभी तक ऐसा है और ये तक ऐसा हो गया, थोड़ा सा भी टेक्टोनिक प्लेट को हिल जाएगा ना, पूरा एक कंट्री तबाह हो सकता है, लाखों लोग मर सकते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है तो आपकी खराब हो सकती है, ठीक है, और विद इन मिनट्स हो जाएगा। 7 मिनट तक कोई अर्थक्वेक अगर चल गया, 6-7 मिनट तक काफ़ी है बहुत सारे लोगों के मरने ये रीजन, ठीक है, 6-7 मिनट काफ़ी हो गया, इट कैन कॉज मैसिव डैमेज, ठीक है, ओके। इन दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप इन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट आर सिस्मिक जोन्स, व्हाट आर व्हाई वेयर आर द सिस्मिक जोन्स लोकेटेड इन आवर कंट्री। तो अभी कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक हो रहा है, मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे हिमालयस भी ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे, और वो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये दो प्लेट्स ऐसे हैं, ऐसे धीरे 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 हर साल कुछ ना कुछ इंच उसका बढ़ता जाता है, ठीक है, ओके। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स आर द वीक जोन्स। जहाँ पे ये प्लेट्स के बाउंड्रीज होते हैं, दीज आर द वीक जोन्स, ये नहीं, ये वाले एरियाज, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। These weak zones are also known as seismic or fault zones, ठीक है। तो आपके जो बाउंड्रीज होते हैं इनके भाई साहब टेक्टोनिक प्लेट्स के, बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, so these boundaries of tectonic plates are the weak zones, ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, weak zones। Boundaries of these tectonic plates are known as weak zones, ठीक है, and hence they are also known as seismic or fault zones. In India, the area most threatened are, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस और सेंट्रल हिमालयस, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो आपका पूरा जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है वो प्लेन पूरा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, ठीक है, राजस्थान में भी, और ये वाला प्लेन, ये सब आपके सिस्मिक जोन्स हैं, दीज आर सिस्मिक जोन्स। इसीलिए अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे ना तो आपको इतने हाई राइजेस नहीं मिलेंगे, जैसे मुंबई में आपको इतने हाई राइजेस मिलते हैं वैसे दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्रोन एरिया, सिस्मिक जोन, वहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स बनाना थोड़ा खतरा है, ठीक है, क्या है। सो दीज आर सिस्मिक जोन्स। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंजेटिक प्लेन। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया also fall in this danger zone. तो कुछ एरियाज आपके साउथ इंडिया के they also fall in this danger zone. There people are we clear on this one people? Okay. How the power of an earthquake is estimated? At what strength it becomes destructive? The power of an earthquake is expressed in terms of its magnitude on a scale called the Richter scale. तो अर्थक्वेक का पावर हम किस में मेजर करते हैं, एक स्केल पे मेजर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल। द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7, ठीक है। तो आपके जो अर्थक्वेक्स हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अर्थक्वेक्स व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव हैव अ मैग्नीट्यूड हायर देन 7, ठीक है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7। तो रिक्टर स्केल पे कोई भी ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा होगा वो डेंजरस होगा, ठीक है। Powerful and dangerous earthquakes on Richter scale would have a magnitude of more than 7.
आपको मालूम भी नहीं आपके अंदर अर्थक्वेक हो रहा है, आपके नीचे नीचे हजारों लोग, मतलब दिन में कम से कम 6 से 7 बार अर्थक्वेक्स होते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, थोड़ा सा क्योंकि वे भाई साहब लिक्विड के ऊपर है। अर्थ का जो सेंट्रल क्रस्ट है वो मोल्टेन, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, तो आप समझ लो एक मोल्टेन क्रस्ट के ऊपर सब तैर ही तो हैं, तो थोड़ा बहुत तो कंपन होगा ही, लेकिन ये कंपन आपका काफ़ी नहीं है। जब रिक्टर स्केल में 7 से ज़्यादा का कंपन हो तब प्रॉब्लम है, तब बिल्डिंग्स गिरने के चांसेस है, मैसिव डिस्ट्रक्शन टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होने के चांसेस है। ठीक है, क्लियर है? सो यू आर नॉट इवन अवेयर दैट मेनी अर्थक्वेक्स हैपन अंडर यू डेली। ठीक है, उनका आपको एहसास भी नहीं होता है क्योंकि वो बहुत वीक अर्थक्वेक्स होते हैं, दे आर वेरी वीक टू कॉज any random changes. Okay? Like many other scales in science, decibel is another example. Richter scale is not linear. This means that an earthquake of magnitude 6 does not have twice the destructive energy or an earthquake of magnitude 3. ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर कोई earthquake आया जिसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 6 है वो 3 से 2 गुना ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा डिस्ट्रक्टिव पावर भी उस अर्थक्वेक का बढ़ता जाएगा। ठीक है, in fact an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy। तो मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा, देखो 3 से 5 बढ़ा तो ये आप बोल सकते हैं 1000 गुना बढ़ गया ये वैसा। 3 से अगर 6 होगा तो समझ लो 2000 गुना बढ़ गया, ऐसा हो। ठीक है, ऐसा जा रहा है स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more energy than an earthquake of magnitude 5। ठीक है, ऐसा होता है। Tremors of the earth can also be caused when a volcano erupts। तो कभी-कभी volcano eruptions होते हैं, लेकिन volcano में एक सहूलियत क्या है कि volcanoes अचानक भयानक में नहीं होते, बहुत धीरे से उसमें होते हैं। ठीक है, तो volcano जब होता है तब भी वैसा tremors प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब volcano होगा तो वहाँ से लोग बहुत दूर चले गए होंगे, बहुत टाइम लगेगा एक volcano को धीरे 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 डेवलप होने। ठीक है, वॉल्केनिक एरिया में हम रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, बट वॉल्केनिक एरिया से लोग पहले ही बहुत दूर चले जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस जहाँ पे होते हैं उससे दूर चले जाते हैं पहले से, तो वी आर सेफ फ्रॉम वॉल्केनोस। ठीक है, लेकिन वॉल्केनोस के लिए भी अर्थ में आपके ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और अ मेटियोर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। तो एक बहुत बड़ा मेटियोर अगर हिट करता है या कोई एटॉमिक बम अगर फॉर्म होता है। ठीक है, सो हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स। ज़्यादा करके अर्थक्वेक्स आपके कॉज होते हैं अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो अर्थक्वेक के रीजंस क्या क्या है वैसा, अर्थक्वेक के रीजंस क्या क्या है, एक हो गया आपका मूवमेंट, ये प्राइमरी रीजन है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, दिस इज द प्राइमरी रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, उसके बाद आप समझ लो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये आपका एक वैसा रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है वो, व्हाट कुड बी द रीजन? ठीक है, आपका वैसा यहाँ पे जैसे वॉल्केनोस। ठीक है, वॉल्केनो और कोई मेटियोर हिट्स द अर्थ, व्हेन अ मेटियोर हिट्स द अर्थ, और क्या हो सकता है बोलो, न्यूक्लियर, मेटियोर हिट्स द अर्थ और मेटियोर हिट्स द अर्थ, क्या बोला वैसे हमने, वॉल्केनिक eruption। ठीक है, वॉल्केनिक eruption, ये आपके तमाम कॉजेज हैं अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक मतलब होता है ट्रेमर्स इन द अर्थ। ठीक है, ट्रेमर्स इन अर्थ जिसका मैसिव डिस्ट्रक्शन, और यही प्राइमरी रीजन, दिस इज द प्राइमरी रीजन। ठीक है, अर्थक्वेक का प्राइमरी रीजन है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये 4 रीजंस हैं जिसमें से प्राइमरी रीजन है आपका मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, व्हाट इज द सिस्मोग्राफ? ठीक है, द ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स। तो ये जो ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, दीज ट्रेमर्स, द ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर नोन एज सिस्मिक वेव्स। तो सरफेस ऑफ अर्थ में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। ठीक है, ओके, सो द ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक, जो कंपन प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक के, प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर नोन एज सिस्मिक वेव्स।
द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। तो ये भाई साहब आपका सिस्मोग्राफ होता है जिसमें आपके वेव्स के कंपन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन द ट्रेमर्स अकर। तो एक पेंडुलम होता है देखो ऐसे, और ये आपका सिस्मिक, ये पूरा हिलने लगता है ना भाई साहब, ठीक है। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स, ओके। A marker is attached to the vibrating system. The marker records the seismic waves on a paper which moves under it. ठीक है? By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown by it. तो आपके देखो seismic waves ऐसे प्रोड्यूस हुए हैं, ऐसे धरती के ऊपर ये seismic waves प्रोड्यूस हुए हैं, और इसको आप पैरेलली धरती से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। These are also, they can also estimate the energy associated with the earthquake, which determines its power to cause destruction. तो कितना एनर्जी उस अर्थक्वेक से एसोसिएटेड था, इसको भी डिटरमिन किया जा सकता है, जिससे अपन ये बता सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना पावरफुल था ये अर्थक्वेक, ठीक है, हाउ पावरफुल इट वाज, ओके। व्हेन द ब्रेक लाइन, दैट इज द फॉल्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक सडनली मूव्स, द मूवमेंट कॉजेज वाइब्रेशन, दैट इज सिस्मिक वेव्स टू रेस रैपिडली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो जैसे ही वैसा वैसा होगा तो ऐसे सिस्मिक वेव्स जाएंगे। जब भी आपका टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होगा ऐसे वेव्स जनरेट होंगे। तो समझ लो ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ये सिस्मिक वेव्स पूरा ऊपर तक जाएगा। इट इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑल द वे अप, ठीक है, ओके, इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द फोकस। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सबसे ज्यादा वेव्स जहां पे जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस, और उस फोकस के ऊपर होता है भाई साहब एपिसेंटर। सबसे ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है एपिसेंटर में, ठीक है। जो शहर या जो प्रांत या जो गांव उस एपिसेंटर के ऊपर होगा उसमें सबसे ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना व्हाट वाज द प्लेस ऑफ एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। एपिसेंटर जो है, एपिसेंटर किसी अर्थक्वेक का सबसे मैसिव डिस्ट्रक्शन वाला एरिया है, ठीक है। सबसे मैसिव डिस्ट्रक्शन बिटवीन अर्थक्वेक हैपेंस एट द एपिसेंटर, ठीक है। मैक्सिमम सिस्मिक वेव्स रीच हियर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत बड़ा एरिया इंपैक्ट होता है, लेकिन एक उसका पॉइंट रहेगा एपिसेंटर जहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ रहेगा, जहां पे सबसे ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ रहेगा, ठीक है। What suggestions will you give to people living in seismic areas so that the destruction due to earthquake can be minimized? We have learned that the earthquakes cannot be predicted. Earthquake एक इकलौता नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते, ठीक है। We also have read that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. ज्यादा करके जो लोग सिस्मिक जोन्स में रहते हैं इनको पहले से ही सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन्स शुड बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। तो जो बिल्डिंग्स होते हैं ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि ये मेजर झटके को बर्दाश्त कर सके, दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। वी नो दैट अर्थक्वेक्स कैन वेरी अ ग्रेट डील इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो बहुत लंबा टाइम तक चलता है, इनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक होती है। Therefore, the response of a building or a structure, however well built it may be, will also be uncertain. हम बता नहीं सकते कि एक बिल्डिंग कितने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक से भाई साहब गिर जाएगी, ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग की अलग अलग कैपेसिटी होती है और जो कंपन प्रोड्यूस होता है उससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है और पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। A lot will depend upon the site of the structure, the soil on which it stands and many other factors, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। The best we can do is to make the structure simple so that it is quake safe, ठीक है। तो ऐसा देखो बिल्डर्स लोग बोलते हैं कि ये earthquake resistant बिल्डिंग है, लेकिन कोई भी ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है कि earthquake आएगा तो वो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, ठीक है। We can make the structure safe, but we cannot guarantee against destruction when an earthquake actually happens, ठीक है। Consult qualified architects, ठीक है, structural engineers before building. Make the structure symmetrical so that the mass is disturbed uniformly. Structure जितना symmetrical होगा उतना चाहिए। देखो कैसा है, समझ लो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भाई साहब क्या है, सारे बालकनीज है, सारे बालकनीज इधर है, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है, ये एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा
तो ये वाला पार्ट भारी होने के चलते ये पहले गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिमेट्रिकल इधर भी बालकनी डालोगे हर फ्लोर पे ऐसे, ठीक है, इस फ्लोर पे इस तरफ, इस फ्लोर पे इस तरफ, ऐसे अगर आप बालकनीज डालोगे तो वो आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आर इजीली सस्टेनेबल, ठीक है। इन हाई सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर। अगर आप देखोगे जापान एक हाई सिस्मिक जोन है, ठीक है, जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, इसीलिए वहां के लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो लकड़ियों का बनाते हैं, वो बेसिकली सीमेंट और मोटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दे यूज इट मड और टिम्बर, टिम्बर अगर होगा, लकड़ियां अगर होंगी, इज बेटर देन हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जापान में ज्यादा करके घर आपके लकड़ियों से बने हुए हैं, ठीक है। मेक रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। तो आपके जो जब अभी देखो अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो भाई साहब सीमेंट का रूफ है, ये किसी के ऊपर गिरेगा तो बचना मुश्किल है ना, लेकिन अगर लकड़ी का कुछ चीज गिर गया हमारे ऊपर तो हमसे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो मेक रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, बहुत हैवी डैमेज नहीं होगा और लाइफ को भी हम बचा सकते हैं। जापान में आपके मैक्सिमम जो हाउसेज हैं वो टिम्बर से बने हुए, मैक्सिमम हाउसेज, ठीक है। जितने भी कबर्ड्स होंगे आपके या जितने भी शेल्व्स होंगे उनको वॉल से फिक्स कर देना अच्छा है, ताकि अर्थक्वेक के सामने देखो अलमारी अगर ऐसी है तो अर्थक्वेक के टाइम पे धड़ाम से गिरेगी, ठीक है। अगर वो फिक्स्ड है वॉल से तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है। इट इज बेटर टू फिक्स इट टू वॉल्स, ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, photo frames, water heaters etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on people। तो ये हमारे हैंगिंग्स भी बहुत केयरफुल होने चाहिए, ठीक है। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment installed। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। ये तो सिर्फ अर्थक्वेक के लिए नहीं, ये बाकी सारी चीजों के लिए भी आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमेशा रेडी होने चाहिए, ठीक है। द इक्विपमेंट मस्ट बी चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंश्योर दैट इट इज इन वर्किंग ऑर्डर। तो ऐसे फायर ऑडिट्स होते हैं और इन फायर ऑडिट से भाई साहब पता चल जाता है कि जो मसाला अंदर है वो एक्चुअली में काम करेगा कि नहीं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द रिवीजन ऑन दिस चैप्टर